Explain the features of wealth. Yeah, okay, it is here. So I'll start. Today we are going to study about features of wealth. Wealth means, first of all, the things that we hold is called as wealth. Wealth can be determined as many other things. The money in our account is also a wealth. If a person is buying a land, even that is called as wealth. So wealth can be determined in various forms, and wealth keeps on multiplying. Some of them it decreases also. So according to the wealth, the government charges taxes and all these things happen. Now to come to our topic, it is features of wealth. So point number 5 contains 4 points. Okay, page number 5. On page number 5 you have this answer. Whenever we are studying, we will study directly the question and answer. That is a better way of studying, because from that only the questions will be asked. Instead of studying the entire chapter, we will be completing the entire chapter, but mostly we will be concentrating on question answers. So the question for today is, explain the features of wealth. Wealth refers to anything which has market value and can be exchanged for money. Okay, what is the meaning of wealth? Anything that has market value and which can be exchanged for money. Market value means a particular price is there for a particular product. You very well know that. If you are going to buy a pencil, it has a particular price. It may be 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees. So everything has a particular price and you're very well aware about that price. If you're going to buy a pen drive and if you're going to buy a laptop, you know that a pen drive will cost less than a laptop, isn't it? If you're going to buy a fridge and if you're going to buy an air condition, you very well know that a fridge will cost less than an air condition at times. So if you're going to buy a metal chair and if you're going to buy a plastic chair, the plastic chair will be less costly as compared to the metal chair. So these are the definition. Everything has a market value. That's why they are mentioned over here. Everything has a market value. Somebody holds land. Land is a natural resource. Even land has a market value. Is the market value same of land everywhere? No. It differs from place to place. अगर कोई जगह प्रॉपर सिटी में है तो उसका लैंड ज़्यादा, वो लैंड का वैल्यू ज़्यादा रहता है. अगर वही लैंड एकदम रूरल एरिया में, एकदम विलेज एरिया में, तो लैंड का कॉस्ट एकदम कम रहेगा. बराबर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेल्थ हैज मार्केट वैल्यू. टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, a commodity, underline commodity. Commodity means goods. Always remember, without goods, wealth is not possible. We need to possess commodity, then only it will be regarded as wealth. In order to be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics. What all characteristics? The very first characteristic is utility. यूटिलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आगे. 12th स्टैंडर्ड में भी यूटिलिटी के बारे में आएगा. तो अभी से हम लोग समझ के लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, अभी तक नहीं समझा करके. यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस. अंडरलाइन यूटिलिटी एंड राइट डाउन यूजफुलनेस. हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. अगर वो हमारा यूज का नहीं है तो हम लोग वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे कोई बीमार है, किसी को गैस प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं? If somebody is having a gas problem, what we'll do? We'll buy Eno and come. Eno तो पता है, लेकिन अगर किसी को गैस प्रॉब्लम है ही नहीं, घर पे सब ठीक चल रहा है, तो हम लोग इनो खरीद के लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे. इसका मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है.
जब तक वो हमारा काम का नहीं है हम उसे कभी नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल का यूटिलिटी क्या है? पेंसिल का यूटिलिटी है टू राइट। पेन का यूटिलिटी अलग है, पेंसिल का यूटिलिटी अलग है। वाटर का यूटिलिटी अलग है। वाटर कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द फ्लोर, प्रिपेयरिंग फूड, टेकिंग बाथ, बहुत सारा यूटिलिटी है। ओके, तो अभी समझ में आया यूटिलिटी का मतलब? यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। कोई भी चीज का यूटिलिटी रहेगा तब भी वो सेल होगा। अगर वो कुछ यूज का नहीं है तो कभी वो सेल नहीं होता है। जैसे कि अगर एक स्टोन है तो वो स्टोन का कुछ यूटिलिटी नहीं है, इसके लिए वो सेल होता है क्या? कभी सेल नहीं होता है। आप देखते हो कि स्टोन, बहुत सारे स्टोन्स, छोटे मोटे स्टोन्स पड़े रहते हैं रास्ते में। क्यों? क्योंकि उसका यूजफुलनेस नहीं है, वो यूज का नहीं है। दैट्स वाई कोई भी चीज जो यूज का नहीं है उसका यूटिलिटी नहीं है। अगर यूटिलिटी नहीं है तो किस में नहीं गिना जाएगा? वेल्थ में नहीं गिना जाएगा। तो वेल्थ का मतलब वो सब चीज जिसका हम यूज कर सकते हैं। मनी ऑल्सो कम्स अंडर यूटिलिटी। मनी कैन बी यूज टू बाय वेरियस कमोडिटीज। ओके, ये पूरा जो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर है, इसमें हम लोग ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूटिलिटी। जितना टेक्स्ट बुक में दिया है बस उतना लिखो, काफी है। डोंट राइट मोर देन दैट। एग्जाम्पल्स भी जितना हो सके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल्स यूज करो, बेटर रहता है। यूटिलिटी, a commodity must have the capacity to satisfy human wants. Example, furniture, रेफ्रिजरेटर। फर्नीचर का क्या यूटिलिटी है? We can sit on the furniture, we can use it for various purposes. It attracts, it brings good ambience to our house. Whenever guests come, they use the furniture to sit. We make them sit in the furniture. Refrigerator, if we have refrigerator, whatever things that we want to eat later on, or whatever things that are left over, we can keep in the refrigerator to use for future purpose, or to safeguard it, to keep it safe and to keep it fresh. We use the refrigerator. बहुत कॉमन और सिंपल एग्जांपल है। यूटिलिटी का मतलब है a commodity must have the satisfied, so must have the capacity to satisfy human wants. Scarcity, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand. Scarcity का मतलब है कि अगर कोई भी चीज एक्सेस में अवेलेबल है तो उसका डिमांड कम रहता है। स्कैर्स, जितना वो स्कैर्स रहता है उतना उसका क्या रहता है? प्राइस ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड इज स्कैर्स इन नेचर, नेचुरल कमोडिटी है, नेचर से मिलता है हमें गोल्ड, बट स्कैर्स है, इसके लिए उसका जो प्राइस है वो ज्यादा है। जो फूड ईटेबल आइटम्स है वो इजीली अवेलेबल है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, बट दैट इज इजीली अवेलेबल, इसके लिए उसका प्राइस कम है। A commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. Example, all economic goods for which price is paid. जितना स्कैर्स है उतना उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग किस में गिनेंगे? वेल्थ में गिनेंगे। लैंड भी स्कैर्स ही है, क्योंकि वर्ल्ड, अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड का कैलकुलेट करेंगे तो लैंड स्कैर्स इन नेचर है, वाटर ज्यादा है and land is less as compared to water. Land is less. Majority of the earth's surface is covered with water. You have studied this in geography. That's why when you go to buy land, the prices are very high because it is scarce in nature. Transferability, can commodity be transferred? Yes. जैसे कि तुम्हारा जो सिस्टर का जो भी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल फोन है, या फिर उसका इयररिंग है, या फिर उसका पेन, उसका कंपास बॉक्स, वो ट्रांसफरेबल है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसको यूज कर सकते हो, बराबर। तो कमोडिटी हमेशा ट्रांसफरेबल रहता है। अगर किसी ने लैंड परचेस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए वही लैंड का ओनर रहेगा।
अगर उसको सेल करना है तो वो सेल कर सकता है, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। अगर हम लोगों ने एक मोबाइल फोन खरीदा है, 1 साल के बाद हमें लगता है कि दूसरा फोन खरीद लेते हैं करके, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कैसा करते हैं, सेकेंड हैंड में हम लोग सेल कर देते हैं। तो इसके लिए कमोडिटी हमेशा ट्रांसफरेबल रहता है, उसे ही वेल्थ कहा जाता है। वेल्थ का मतलब वही होता है जिसको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह। लैंड में तो पॉसिबल नहीं है एक जगह से दूसरा जगह, लैंड में क्या ट्रांसफर होता है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होता है। बाकी कोई व्हीकल है, अगर 4 व्हीलर खरीदा है किसी ने, 2 व्हीलर खरीदा है, 5-6 साल बाद उन्हें लगता है कि मेरे को दूसरा नया गाड़ी खरीदना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर का मतलब है सेलिंग, सेकेंड हैंड जो भी हम लोग सेल करते हैं। अभी लैंड में तो सेकेंड हैंड वैल्यू नहीं रहता है, लैंड का वैल्यू तो इंक्रीज ही होते रहता है, तो लैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? ट्रांसफरेबल का मतलब वेल्थ जो रहता है वो इजीली ट्रांसफरेबल रहता है। जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली किसको मिलता है, चिल्ड्रन को ही, उनके जो बच्चे हैं उनको ही मिलता है। तो इसके लिए वेल्थ जो है वो ट्रांसफरेबल कमोडिटी है। तो कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरा जगह भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर एक गाड़ी खरीदा है दिल्ली में, वो गाड़ी दिल्ली में सेल हो रहा है, तो उसको हम लोग मुंबई में भी आके यूज कर सकते हैं। मुंबई में उसको लाइसेंस, नंबर प्लेट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, और फिर हम लोग वो गाड़ी मुंबई में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जगह से खरीदा है वही जगह में उसे यूज किया जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक पर्सन से दूसरा पर्सन ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से भी दूसरा जगह वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपने किसी को लैपटॉप, आपका लैपटॉप आपको सेल करना है, तो आपने सेल किया, तो वो पर्सन वो लैपटॉप को किधर भी जाके यूज कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, वेल्थ इज ट्रांसफरेबल। इफ द गुड इज मटेरियल और tangible, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर। अभी देखो यहाँ पे लोग ने एकदम क्लियरली मेंशन किया है, कमोडिटी और गुड एक ही है। तो गुड का मतलब इधर क्या हो गया, गुड्स, अंडरलाइन गुड एंड राइट डाउन कमोडिटी। तो इधर कंफ्यूज नहीं होना है, इज अ मटेरियल और tangible देन ओनली। मटेरियल का मतलब है अगर वो कोई चीज है, जैसे कि मटेरियल का मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि पेपर एक मटेरियल हो गया, क्लॉथ मटेरियल, ऐसा नहीं है। मटेरियल मतलब कोई भी चीज जो ट्रांसफरेबल है उसे क्या कहते हैं, मटेरियल। और tangible, tangible अंडरलाइन राइट डाउन कैन बी मूव्ड। tangible का मतलब है कैन बी मूव्ड। tangible, then only it is possible to transfer from one place to another. intangible का मतलब क्या हो गया, cannot be moved। अभी लैंड क्या है, लैंड intangible है। लैंड के अलावा बाकी जो भी है वो tangible है। हाँ, अगर हम लोग घर का बात करते हैं, अगर एक घर है तो वो भी क्या है, intangible है। घर का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन घर हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो लोग ने एकदम अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल एग्जाम में लिखो, व्हीकल एंड ज्वेलरी जो इजीली ट्रांसफरेबल है। लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नलिटी। A good can be transferred only if it is external to human body. Example, bag और chair। एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं वो बाहर रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग ने डिटेल में मेंशन नहीं किया है, बट उनका कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के जो बाहर का चीज है, जो भी हम लोग एक्सेसिबल है, वो ट्रांसफरेबल है। ओके, वही उनका बोलने का मतलब है, गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल, बैग, चेयर एक्सेट्रा। अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी हार्ट ट्रांसप्लांट जब तक एक पर्सन जिंदा है तब तक वो उसका हार्ट किसी को नहीं दे सकता। अगर उसको कुछ हो जाता है, इफ ही passes away, ओनली आफ्टर दैट द हार्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो इसके लिए यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो भी चीज ह्यूमन बॉडी के बाहर है वो ट्रांसफरेबल है।
Understood? A good can be transferred only if it is external to human body. Example, bag, chair, etc. Our very first point was utility, जिसमें हम लोगों ने देखा और commodity. Commodity का मतलब है goods should have the capacity. अगर वो हमारा want satisfy नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको कभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमारे काम का ही नहीं है. Scarcity, जो भी चीज हम लोग खरीदते हैं, जो भी commodity है, अगर वो scarce है तो उसका डिमांड ज्यादा रहता है, तो उसे वेल्थ में इंक्लूड करते हैं. ऑल इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है और जिसके पीछे पैसा है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स. जैसे कि एयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी डोंट हैव टू पे फॉर ऑक्सीजन. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड्स. बट वाटर, फूड, ये सब किस में आएगा? इकोनॉमिक गुड्स में आएगा. इकोनॉमिक गुड्स मीन्स विच हैज अ प्राइस टैग. ट्रांसफरेबिलिटी, transferable from one person to another and one place to another place. मटेरियल या फिर टैंजिबल का मतलब वही है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैन बी मूव्ड. एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हीकल, ज्वेलरी, एक्सेट्रा. एक्सटर्नलिटी, गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. एग्जांपल, बैग और चेयर. डू यू नो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी? This is actual transfer of goods from one person to another. Example, vehicle. Notional transferability, it is possible the good physically, but there can be transfer only ownership. तभी इसके बारे में तो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, ये आपके नॉलेज के लिए ही है. फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है व्हीकल. नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है लैंड, जहाँ पे सिर्फ नाम ट्रांसफर होता है, वो प्रोडक्ट उधर का उधर ही रह जाता है. We'll continue with classification of wants. क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, फिर भी ध्यान दो, थोड़ा समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन वांट्स को कैसा क्लासिफाई किया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स आर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. एकदम सिंपल है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है. इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. वांट्स को हम लोग कैसा क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफाई का मतलब तो तुम्हें पता ही रहेगा, बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव डन मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स. सबसे पहला इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इकोनॉमिक वांट्स वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व. मॉनिटर का मतलब मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था. मॉनेटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी. एन इंडिविजुअल हैज टू पे प्राइस फॉर देम. एग्जाम्पल, फूड, मेडिसिन, एक्सेट्रा. इकोनॉमिक वांट्स का मतलब क्या है? जिसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है. ट्रांजैक्शन का मतलब है मनी. An individual has to pay the price for them. Example, food and medicines. यही एग्जाम्पल लिखो. यही एग्जाम्पल के अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो हम लोग लिख सकते हैं. नॉन इकोनॉमिक वांट्स का मतलब है उसमें हमें पैसा नहीं भरना होता है. वी डोंट हैव टू पे मनी बट स्टिल वी यूज इट.
नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोस वांट व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट। इसका आपको कोई आके पैसा नहीं मांगेगा, नोबडी विल चार्ज यू। एग्जाम्पल एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। एयर यूज करने के लिए, सनशाइन यूज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगता है, इसके लिए उसे क्या कहा जाता है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स refers to those wants which are satisfied at individual level. Example, doctor using a stethoscope, a judge wearing his coat. ये इंडिविजुअल वांट हो गया। आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। अगर स्कूल में, जब तक स्कूल में थे, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी था। तो ये इंडिविजुअल वांट हो गया, है कि नहीं? तो जब तक स्कूल में हो तब तक आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है। अब स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ वो बच्चे पहनेंगे जो स्कूल जाते हैं, बाकी कोई पहन के घूमेगा क्या? नहीं। इसके लिए उसे क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल वांट, क्योंकि वो आइडेंटिटी है कि यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, दैट इज एन आइडेंटिटी। अभी आपने बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हो देखा रहेगा, तो ऑफिस जाते वो लोग क्या पहनते हैं, आईडी कार्ड पहनते हैं। तो आईडी कार्ड क्यों पहनते हैं? उनका वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि दे बिलोंग टू एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन which are satisfied at individual level। जैसे डॉक्टर को आपने देखा रहेगा कि दे यूज अ स्टेथोस्कोप, और जज को आपने देखा रहेगा कोट पहनते हो। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल वांट हो गया, ये पर्टिकुलर पर्सन का वांट है। अभी कलेक्टिव वांट के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव वांट का मतलब है ये वांट साथ में सेटिस्फाई होता है। जैसे कि ट्रेन में ट्रैवल करना, ट्रेन में ट्रैवल करना क्या हो गया, कलेक्टिव वांट हो गया। व्हाई? बिकॉज एक टाइम पे बहुत सारे लोगों का वांट एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है। सबको ऐसा नहीं कि सबको एक ही जगह पे जाना है, सबको अलग अलग जगह पे जाना है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सबका वांट एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव वांट। ट्रेन में ट्रैवल करना, बस में ट्रैवल करना, ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव वांट हो गया। कलेक्टिव वांट्स आर दो सोशल वांट वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कॉलेज में पढ़ना भी क्या हो गया, कलेक्टिव वांट ही हो गया, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, दैट इज अ कलेक्टिव वांट, एक साथ सेटिस्फाई हो जाता है सबका नीड। एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो यही एग्जाम्पल लिखो, डोंट राइट एनी अदर एग्जाम्पल, राइट ओनली दिस एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरी, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। आपके घर पे बहुत सारा चीज ऐसा रहेगा जो नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब है जो, जिसका सच में जरूरत है। फूड, है कि नहीं? बेसिक थिंग है जो हर घर में रहता ही है। और कल क्या बनाना है, या फिर नेक्स्ट वीक में हमें कितना सामान लगेगा, पूरा महीने का क्या सामान लगता है, ये सब चीज क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करके आपके पेरेंट्स खरीद के रखते हैं ये सब चीज। पूरा महीने का तो एक साथ नहीं खरीद सकते वेजिटेबल्स एंड ऑल, लेकिन हाँ, पूरा महीने का जो चीज है जो एक साथ खरीदा जा सकता है वो खरीद के स्टोर किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक वांट्स। क्लोथिंग भी हमारा क्या है, बेसिक वांट्स है। शेल्टर, एक घर होना, वो भी क्या है, बेसिक वांट है। फिर हेल्थ, सबसे पहले अगर कोई घर पे बीमार होता है तो हम सब छोड़ के किस में ध्यान देंगे, वो जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, मम्मी डैडी बहन भाई जो भी है, उसको ठीक करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो हेल्थ भी क्या हो गया, नेसेसिटी हो गया। और एजुकेशन, एजुकेशन भी एकदम बेसिक वांट है, एकदम नेसेसिटी हो। तो ये क्या हो गया, नेसेसिटीज में आ गया। नेसेसिटीज का मतलब है कंपलसरी, इस ये वांट सेटिस्फाई होना ही है। उसके बाद आता है कंफर्ट। कंफर्टेबल वांट्स का मतलब है कपड़े हाथ से भी धोया जा सकता है, वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। जब हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो वो क्या हो गया, कंफर्ट हो गया। मिक्सर, जैसे कि पहले के टाइम में हाथ से ही पूरा मसाला वगैरह बनाया जाता था, अभी क्या यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, कंफर्ट हो गया। प्रेशर कुकर, ये भी क्या हो गया, कंफर्ट हो गया। समझ में आया नेसेसिटी का मतलब क्या है, कंफर्ट का मतलब क्या। अभी आता है लग्जरी। लग्जरी का मतलब है घर पे एयर कंडीशन देना कंपलसरी तो नहीं है। ऐसा बहुत सारा घर है जहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है। तो एयर कंडीशन किस में आता है, लग्जरी वांट में आता है। बेसिक वांट में आता है क्या, नहीं। कंफर्ट वांट में आता है, नहीं। किस में आएगा, लग्जरी में आएगा। घर, एक अच्छा वेल फर्निश्ड घर जहाँ पे अच्छा फर्नीचर वगैरह है, वो भी क्या हो गया, लग्जरी हो गया। कार, कार भी रहना क्या है, एक लग्जरी है।
बिना कार का भी लोग सरवाइव करते हैं, बिना कार का भी आप यहाँ से वहाँ इजीली ट्रैवल कर सकते हो, ओला बुक करके, बस में, ट्रेन में। तो कार और खुद का व्हीकल होना क्या हो जाता है, लग्जरी हो जाता है। तो हमने क्या कंप्लीट किया, वी कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। यूटिलिटी का फीचर्स ऑफ वेल्थ वी कंप्लीटेड। So as you can see, the questions that are asked, features of wealth and characteristics of human wants. Apart from this, do not study any other question because it won't be asked in the exam. Start reading. Wealth. Point number 5, wealth. So today we studied about features of wealth. Features of wealth, wherein we saw that there are 4 points. So whenever you are studying, you have to make sure that you study the question answer which are behind the textbook. Concentrate on that first, then only you move towards the things that are asked in the exam. So mostly in 11th standard, it will be asked only from your textbook, and in the textbook also behind whichever question is there, only from that the questions will be asked. Now see, there is one more objective type question which many of the students get confused, and that question is this one: statements incorrect with reference to Adam Smith. So whenever you are reading this question, make sure that you have to write the answer that is incorrect. I repeat again, A, B, C, D. 4 options is given. You have to find out which one is incorrect according to Adam Smith. According to Adam Smith, which one is incorrect? They have given, is option 1 incorrect? In option 1 they have given D. Is D incorrect? Is A, B and C incorrect? Is A and D incorrect? Is C and D incorrect? So don't get confused. You have to see, you have to read it properly, and you have to understand, and you have to write the answer. Which answer is incorrect? Adam Smith is a classical economist. This is the correct answer. Wealth of Nation is authored by Adam Smith. This is also correct answer. Economics is a science of wealth. Correct answer. Economics studies common man. Incorrect. Which option you will select? You will select option number 1, that is D. While writing in the exam, you only have to write the option, nothing else. This brings us to the end of the lecture. If you have understood the lecture, kindly like and subscribe. Thank you.